a perspective also on venture capital and how they're trying to raise. तो वो एंगल भी आ जाएगा इस गुफ्तगू में. मोहम्मद अब्दुल्ला of Lahore Technologies, if you could please come on stage. Thank you. Have I missed anyone? We're good? ये मेरे पाकिस्तान में जो चंद फेवरेट स्टार्टअप्स हैं जहाँ से मैं खुद भी शॉपिंग करता रहा हूँ. ज़बरदस्त कंपनी है ये बेबी प्लैनेट. इसकी जो फाउंडर है इरफान अहमद. इरफान इतना क्वाइट और छुपा रहता है कि नज़र ही नहीं आता. इरफान प्लीज़ मेरे पास आ जाओ यार, तुम्हारी तो वैसे ही आवाज़ बाहर नहीं जानी कुछ. बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी. आओ. पैम्पर बेच रहे हो? बिक रहे पैम्पर. अच्छा जी. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच. वेरी डिवर्स पैनल. I would like to start with a question from Khurram particularly. Khurram, I've seen you over the years. आपने corporate roles भी लिए. Then you worked with a university and you built an entire ecosystem there. And then now you're doing venture capital. आपके ख्याल में हमारा जो स्टार्टअप सीन है, अगर उसका आप पिछले 10 साल का एक जर्नी बताएं तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आई है, क्या चीज़ें ख़राब हुई हैं, क्या चीज़ें बेहतर हुई हैं. इफ़ यू कैन गिव अस अ bird's eye view on the past 10 years of Pakistan startup ecosystem. Okay, that's a good question. I think my exposure to the startup ecosystem in Pakistan started back in 2012, I think. That's when Shahbaz Sharif Saab was very enamored by the role of youth and wanted to counter, Khan Saab's, sort of popularity amongst the youth of Pakistan. So he wanted to do something for the youth that they could benefit from, and that's where, if you remember, Plan 9 concept started. Some of the people in the industry that were part of that, group who lobbied for it, and eventually Umar and you guys and took it forward. So us waqt, one thing that was very apparent was that they weren't not us waqt we startup scene. There was Park Wheels, even I think Zameen existed at that time. And there were lots of services companies. लेकिन ज़्यादातर जो टेक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर काम हो रहा था वो सर्विसेज के अंदर काम हो रहा था. So one evolution that I've seen which is promising is the move from services-based work, which is very linear growth. अगर आपने $100 का रेवेन्यू करना है, आपको 100 बंदे हैं, तो 200 करने के लिए आपको 200 बंदे चाहिए होंगे. So one of the transitions that has happened is from the services to the product model. And that has been very promising क्योंकि इसके अंदर शुरू में आप R&D करते हैं, there's added expense, but once the product is ready, then you can grow a lot faster. जिसको hockey stick growth कहते हैं. There are lots of companies that came around and grew on the heels of their products. The other thing was that entrepreneurship was not something that was in, right? People used to shy away from it. Most of the universities that we know of, उनका success criteria ये होता था कि हमारे graduate होने के बाद उनकी placement कहाँ पर होती है, किन companies में होती है, उनकी starting salaries क्या हैं. Those were the KPIs that were being measured by universities also. So nobody used to bother कि हमारे अगर 1000 graduate है तो अगर उनमें से कंपनियां कितने लोगों ने start की हैं. That was not something that was tracked. So that has changed over the past 10 years. More people are starting their own companies. They're considering entrepreneurship as a viable alternative career choice compared to working for a multinational company. So I think that has changed. That's a positive change that has happened. Third thing that is very obvious is risk capital, availability of risk capital. आज से 10 साल पीछे आप चले जाएं, most of the companies that we know of, they were either self-funded या friends and family funding उनके अंदर आई थी. One thing that has happened now is starting with international capital, and then now even local capital has started making its way to startups and tech startups particularly, which is a promising change. I think last year was phenomenal. In $50 to $400 million that came into the ecosystem. This year is probably going to be the same. It's not going to grow like it did in last year. I think that was an anomaly. We could talk about it perhaps later on.
But there is now risk capital available in the space, and a bright, promising entrepreneurs who has a great idea, great business idea, profitable business idea, can now go out and raise money either from local investors or international investors. I think those are the three big changes that have happened. And lastly, I think government has sort of opened its eye to this sector, and there's a lot of, starting with the Punjab government, and then federal government with the Ignite program, Punjab government Plan 9, Plan X, and then a lot of universities, and then popular media, TV shows. You run a TV show also. So all of that are now sort of open to the idea of entrepreneurship, and tech entrepreneurship, and the promise that it holds. So these are all the positive changes that have happened over the last 10 years. जी बहुत ज़बरदस्त ओवरव्यू था, थैंक यू वेरी मच. आई हैव नाउ आई गोना मूव टू साकिब. यार ये जो इनेबलर्स की खप पड़ी हुई है, जिधर जाओ, मैंने आजकल एक काम शुरू किया हुआ है, वो भी काम है ट्रेनिंग्स वगैरह का. हम जिस शहर में जाते हैं वहाँ पे इनेबलर्स होता है, वहाँ पे आपका नाम होता है. ये इसके बारे में प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं. लोग कहते हैं फैड है, बबल है, बर्स्ट हो जाएगा. कोई कहता है जी कि ये कारोबार है करने वाला, हर बंदा कोशिश कर रहा है ये करने की. आप देखें छोटी छोटी दुकानें खुल गई हैं. यू केम अप विद दिस वेरी अर्ली. सनी था एक, आई थिंक सनी अली ने किया था अपना काम एक्सट्रीम कॉमर्स में, फिर आपने शुरू किया इनेबलर्स. जो जर्नी है अभी तक वो कैसी रही है, क्विकली अगर आप मुझे एक रन दे सकें. एंड व्हाट आर द कोर चैलेंजेस फॉर समवन who is not really raised venture capital, कि जी मैं पहले पैसे लेके आऊँगा और फिर मैं अपनी कंपनी शुरू करूँगा, उसको स्केल करूँगा. खास तौर पर वैसे भी VC मॉडल पे आई थिंक सेकंड दिस डज नॉट मेक सेंस. दिस काइंड ऑफ बिजनेस बहुत और दुकानें खोल रहे हैं आप. मैं अपने आप को दुकानें कहता हूँ, लेकिन यू बेसिकली ओपनिंग ट्रेनिंग सेंटर्स और आफ्टर दिया. हेलो. एक्सपो सेंटर में सी पाकिस्तान 2022 का मेला सज चुका है और इस हवाले से तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया है. 129 यूनिवर्सिटीज़ के 1000 स्टार्टअप्स की तख्लीकी आइडियाज़ भी पेश किए गए हैं. एक्सपो सेंटर में एफसेप के ज़ेर तमाम सी पाकिस्तान 2022 का आज इनेकाद किया गया है और इस वक्त स्टूडेंट्स की और जो वहाँ पे मेहमान हैं उनकी कसीर तादाद भी मौजूद है. और इस वक्त जो है 129 यूनिवर्सिटीज़ के 1000 स्टार्टअप्स के लिए तख्लीकी आइडियाज़ पेश किए गए हैं और आज का एक मुकम्मल प्रोसीजर रहेगा और 129 यूनिवर्सिटीज़ 1000 स्टार्टअप्स के तख्लीकी आइडियाज़ पेश करेंगे. एक्सपो सेंटर में सी पाकिस्तान 2022 का मेला सज चुका है, जबकि तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से, तर्जुमा और कौमी तराने से हुआ है. स्टार्टअप्स के तख्लीकी आइडियाज़ पेश कर दिए गए हैं, जबकि तलबा ने 100 से ज़्यादा स्टॉल्स पर अपने बिजनेस आइडियाज़ को प्रमोट किया. पहले ना तो इकोसिस्टम उस तरह से एग्जिस्ट करता था कि आपके पास इतने सारे ग्लोबल वीसीज जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को या वहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख रहे हो. यू हैव अ वेरी फ्यू एंजल इन्वेस्टर्स और दे वर प्राइमरली आइदर कि वो भी एक वेल नोन फैमिलीज से ही थे. एक आध मेरे पास एग्जांपल है जो उस बैकग्राउंड से नहीं थे. बट पॉइंट ये है कि आई थिंक बोथ स्टार्टअप्स एंड वीसीज या एंजल वीसीज वर लर्निंग एट दैट टाइम. उस टाइम पे जो ऑफ़र आपके पास अगर फॉर एग्जांपल अव्वल तो थी नहीं, बड़ी ओपन सी बात है, कोई nobody was really interested to invest in startups at that time. अगर कोई थी तो the offer was not really lucrative, या that was more of a buyout या work for me kind of model as compared to reasonable decent valuation based investment. 50% दे दें. I've seen so many startups giving 10% equity for just 1 million rupees. So we have so many examples like that. So अगर उस टाइम पे वो bad deals की होती, like in my case I have to buy back some shares from an angel also, right? So उस टाइम पे अगर वो चीज़ें की होती, बैड डील्स की होती, तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते, बिकॉज मेरे पास एक सेंसिबल डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टेक कंपनी का होता नहीं, और मेरा फॉर एग्जांपल अगर 10-15% स्टेक होता है, टेक यू सीरियसली बिकॉज दे थिंक ओके यार फाउंडर का तो इंटरेस्ट ही लूज हो गया कंपनी से, तो व्हाई वुड वी इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ कंपनी. तो आई थिंक ये बड़ा मतलब कोई इसमें ब्लैक एंड वाइट सा आंसर उसका ये है कि उस टाइम पे इकोसिस्टम मैच्योर ही इतना नहीं था कि आप इन्वेस्टमेंट्स लेते ही आपको उस तरह से बेहतर डील्स मिलती हैं आपके टेबल पे. हाँ, वी सफर्ड अ लॉट. देयर वर अ लॉट ऑफ आई वुड से कि जब हमने स्टार्ट किया
जैसे यूब भाई ने बात की कि लॉट ऑफ कॉपी कैट्स कम इनटू द मार्केट एंड दे स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू डू, बट पॉइंट ये होता है कि आपकी इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग यू विल एक्चुअली एंड अप बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर कंपनी एज कम्पेयर टू दैट, बिकॉज आपका पैशन तो कॉपी कोई नहीं कर सकता। वेरी ट्रू, पैशन कॉपी नहीं हो सकता। जनाब आपका जवाब क्या होगा? आई विल सेकेंड टू व्हाट फैजान सेड। इसके अलावा सो इकोसिस्टम वाज नॉट रेडी एट दैट टाइम बैक इन 2014-15 एंड अप टू 2018, लेकिन वी वर फॉर्चुनेट टू रेज सम एंजल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पूल ऑफ लोकल इन्वेस्टर्स। मेरा ख्याल है यासिर बशीर वाज इन्वॉल्वड, रोमाना अब्दुल्ला वाज इन्वॉल्वड, उमर जावेद इन्वॉल्वड, Raza Saeed, Park Wheels. So we were fortunate to raise some funds from the pool of local investors back in 2015. But उस टाइम के ऊपर हमारा जो ज़्यादा फोकस था वो था प्रोडक्ट मार्केट फिट बिल्ड करने के ऊपर, और हमने काफ़ी अर्से तक बूटस्ट्रैप किया, क्योंकि जो वीसी फंड्स आप रेज़ करते हैं वो ज़्यादा ग्रोथ के लिए रेज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके यूनिट इकनॉमिक्स फिजिबल नहीं है और अगर आपके ग्रोथ हमारे पास आ रही थी, लेकिन हमें उसकी जो कन्वर्जन रेट कस्टमर्स की ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए और चीज़ों को, सो वी वर मोर फोकस ऑन बिल्डिंग द प्रोडक्ट जिसमें जो कस्टमर्स हमारे साथ हुक करे, उसका जो कस्टमर के एक्विजिशन हम लोग कॉस्ट है उसको किस तरह से लोअर लेके जा सकते हैं और किस तरह से उसकी लाइफ टाइम वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। और उस काम में हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, तो थोड़े से हमने पैसे रेज़ कर लिए थे जिसका हमें रनवे मिला, लेकिन हमने ज़्यादा टाइम बूटस्ट्रैप किया। पार्टी हमारी चेंज हुई थी 2020 में जब कोविड आया, और उसमें हमने ई कॉमर्स के अंदर 10x 12x स्पाइक्स देखी हैं। उसके बाद हमने फिर एक और अपना सीड राउंड रेस किया, हमने अभी प्री सीरीज़ एक और रेस किया है। सो अलहमदुलिल्लाह बीन अ ग्रेट जर्नी सो फार, इस तरह का लर्निंग है। हैव यू रेज़्ड नाउ, लाइक प्रॉपर वेंचर कैपिटल में चले गए? जी, हमने प्री सीरीज़ रेस किया है। उसमें भी हमने एंजल सिंडिकेट, एक यूएस बेस्ड है, दो एक्चुअली, सो माइक्रोसॉफ्ट के कुछ लोग हैं और गूगल के कुछ लोग हैं जिन्होंने एक सिंडिकेट बनाया हुआ है। अभी हमने डिस्क्लोज नहीं किया, नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ओके। आई हैव अ क्वेश्चन ऑन इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, वो कोई भी ले लें। मेरा तो माइंड में फ़ौरन आप आए थे फोरम, लेकिन मुझे साकिब का एंगल भी देखना है इसमें। व्हाट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट? बहुत सादा सवाल है। अब्दुल्ला, अब ART तूने भी किया हुआ है काम यार। व्हाट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट? एक कहते हैं, और ये फैज़ान इसके बारे में बोलता था, मुझे वो मिला था, कहता है गुड मनी बैड मनी होती है। एक गुड मनी होता है, एक बैड मनी होता है। तो साकिब, आपसे जब लोग पैसे ले लेते हैं, बहुत सारे लोगों के कारोबार में दुकानें खुलवाई आपने इंटरनेट के ऊपर और वहाँ पर पैसे भी डाल दिए, इन्वेंट्री भी खरीद दी, व्हाट्स द क्राइटेरिया? देखें, कभी भी आपने किसी भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये आइडिया क्या है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग एक जैसी चीज़ ही कर रहे हैं। अब आप भी आकर कहेंगे जी मेरे पास भी पानी की बोतल है तो मैं भी ये लोगों को सप्लाई करूँगा, बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ इनोवेशन इन इट? सो दैट्स व्हाट वी लुक एट कि हर चीज़ जो भी है उस पर इनोवेशन क्या है। उसके बाद एक कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस शीट, आपकी एक पूरी बैलेंस शीट बनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस प्लान, कि भाई मैं एज एन इन्वेस्टर, जब भी आप किसी पाकिस्तानी या किसी भी बंदे के पास इन्वेस्टमेंट लेने जाते हैं, उसका सबसे पहला ये क्वेश्चन होता है, अच्छा जी मुझे प्रॉफिट कब आए? तो जब भी किसी ने इन्वेस्टमेंट रेज़ करनी हो, उसको बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहिए कि भाई ब्रेक इवन इस डेट को आएगा बेस्ड ऑन दिस प्लान, एंड दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट टू टेक मंथली सैलरी अकॉर्डिंगली। स्टार्टअप फेल इस वजह से होते हैं बिकॉज वो कैश आउट करने पे पहले लग जाते हैं, रादर देन पुटिंग कैश बैक इन टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस टू कंटिन्यू टू स्केल। तो ये बड़ा ज़रूरी है इन्वेस्टर को और स्टार्टअप ओनर दोनों को अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई हम 5 साल हम जो कर रहे हैं हमें कोई इम्पैक्ट नहीं है अगर हम उससे पैसे वापस निकालें। तो दिस इज़ समथिंग आई रियली लुक एट कि इनोवेशन क्या है, पैसे कैश आउट का प्लान क्या है, वापस कब डालने हैं, स्केल कैसे करना है, मेरी इक्विटी क्या है बीच में, मैं क्या मैनेजमेंट या इस कंपनी का हिस्सा हूँ कि नहीं। वेंचर कैपिटल का यही तो पूरा पर्पज़ है कि वो ख़ुद उसका हिस्सा होते हैं मैनेजमेंट, उसके बगैर जो है बहुत कम लोग जो हैं वो उसका पार्ट बनते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट द रीज़न इज़ कि हमने देखना होगा कि पाकिस्तान में लोगों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की, कि उन्होंने कैसे फंड्स या इन्वेस्टर्स को पिच करना है अपना आइडिया बिजनेस, इस पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ समथिंग आई यूजुअली लुक एट बिफोर डूइंग इट। ज़बरदस्त। मैं आप सबके लेता हूँ जवाब, अभी मैं आप पे भी आता हूँ। फिर यू गोना से समथिंग, आपके ख्याल में जी क्या पर्सपेक्टिव है आपका इसको? Yeah, so it depends on the nature of investment. I can talk about, so अगर आप
VC इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे, नॉन इंडस्ट्रियल बिजनेस में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं. सो द इन्वेंटिवनेस, इनोवेशन, ड्राइव ऑफ पीपल, इट डजंट मैटर एज मच, क्योंकि उनका एक फॉर्मूला होता है सेट. आप उसमें ज़्यादातर प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं. यू कैन ऑलवेज हायर पीपल फ्रॉम द मार्केट एंड यू कैन मेक इट सक्सेसफुल. जहाँ तक वेंचर कैपिटल का है, इट्स अ वेरी हाई रिस्क एसेट क्लास एंड द रिस्क कम्स फ्रॉम द फैक्ट के जो बिजनेस जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें एक इनोवेशन का एलिमेंट है, उसमें एक इन्वेंटिवनेस है, और इट बी प्राइमरली सक्सेसफुल on the heels of the people that you're investing in. Right. So good investment is always investment in good people. That's the number one criteria. टीम कैसी है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है या नहीं करती, क्या 4 फाउंडर चारों गोलकीपर हैं, या एक फॉरवर्ड है, एक गोलकीपर है, एक डिफेंडर है. दूसरा बिजनेस मॉडल, वेदर इस मार्केट के अंदर हाउ बिग अ प्रॉब्लम इट इज़, कितना स्केल करेगा, कितना सक्सेसफुल होगा, दैट इज़ समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक. थर्ड, आपका रिटर्न क्या होगा. अब अनफॉर्चुनेटली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे आपका सॉवरेन रिस्क ट्रेड होता है, दीज डेज इज ट्रेडिंग एट अ ह्यूज डिस्काउंट. अभी अगर आप 2-3 हफ्ते या महीना पहले चले जाएं जी, तो पाकिस्तान के डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स वो यील्डिंग 50%, राइट. सो आप डॉलर्स में इन्वेस्ट करें, डॉलर्स में 50% एनुअली आप अर्न करेंगे, राइट. आप उन इन्वेस्टर्स को जिनके पास डॉलर्स में पैसे हैं, उनको ये कन्विंस करना कि आप पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, और आप करेंसी रिस्क भी लें, आप मार्केट रिस्क भी लें, आप प्रोडक्ट रिस्क भी लें, वेंचर रिस्क भी लें, सारे रिस्क को टैक ऑन करें और रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ 50%. सो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन टू मेक, राइट. So you have to ensure investors that the kind of returns that you can generate are disproportionately higher than some of the low risk asset classes. और उसमें VCs in Pakistan are looking for north of 50%, 60% IRR, right? So the business has to be a business that can yield that kind of return. अच्छा, फिर दूसरा ये होता है कि चूँकि आप हाई रिस्क एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप हर बिजनेस में ये सोच के इन्वेस्ट करेंगे कि इसका 50% IRR है, तो 10 में से 9, 8, 7 बिजनेस फेल हो जाएंगे. तो आपके पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न 50% नहीं आएगा. सो दैट मीन्स अगर आपने पोर्टफोलियो लेवल पे आपको ये रिटर्न चाहिए, यू हैव टू डिमांड इवन हायर रिटर्न फ्रॉम एवरी इन्वेस्टमेंट दैट यू मेकिंग, राइट. सो इट हैज़ टू बी अ रियली हाई ग्रोथ venture that you invest in. Has to be high growth. बिल्कुल सही, बिल्कुल ज़बरदस्त. Thank you very much. You have something to say? उसके बाद अयूब भाई, and then I have a question for Abdullah. नबील, एक छोटा सा कमेंट है, उसके बाद फिर थोड़ा सा आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. उसको मैं सबसे पहले तो ये इनोवेशन, माजरत के साथ दोनों पैनलिस्ट बैठे हैं, आई रिस्पेक्ट ओपिनियन, बट इनोवेशन आई थिंक इज़ अ बिट ओवररेटेड. इनोवेशन करना कोई मतलब इट्स नॉट ईजी, एंड टू make something new which no one has ever done before, it's not easy, and not everyone can do it. मेरा ख्याल ये, जब इनोवेशन कहते हैं ना, it's more of a mindset. यानी यार आप जब इनोवेशन कहते हैं ना, देखें आप अपनी ऑडियंस को देखें, जब आप इनोवेशन कहते हैं ना, तो आप इन बच्चों को डरा देते हैं. इनोवेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी रेयर, एंड इनोवेशन इन माई हम्बल ओपिनियन इतना मैटर भी नहीं करती. मैटर क्या करता है? एग्जीक्यूशन. ठीक, आप वही काम कर सकते हैं जो आपसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बेहतर करेंगे यू कैन बी मोर सक्सेसफुल. सेकेंडली, आपने पूछा इन्वेस्टमेंट के बारे में. देखिए पाकिस्तान अब इन फॉरम्स के ऊपर जनरली जब हम बात करते हैं तो हम जनरलाइज कर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट से मुराद है वेंचर कैपिटलिज्म की. दैट इज़ नॉट द ओनली फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. अगर तो आपने किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, पर्सनली आई वुड पुट 80% वेटेज ऑन द फाउंडर. फाउंडर कौन है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो कितना जनूनी है, उसका प्लान क्या है, वो कैसे एग्जीक्यूशन करना चाहता है. आई वुड हैव अ वर्ड विद हिम. और अगर मैं आई एम कन्विंस्ड देन आई वुड गो. ये सारी चीज़ें प्रीरेक्विजिट्स हैं. आपने बिजनेस प्लान देखना है, वायबिलिटी देखनी है, फिजिबिलिटी, दैट्स पार्ट ऑफ द डील, बट प्राइमरीली आप फाउंडर को देखते हैं. बट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एनवायरनमेंट नहीं है वेंचर कैपिटलिज्म की, एंड दे आर मच बेटर सोर्सेज ऑफ इनकम या इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं. दिस इज़ अ रियलिटी. आपके पास 5 करोड़ रुपए होंगे, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, पूछ लें सबसे, एक ही जवाब आएगा, मैं प्लॉट ले लूँगा. प्लॉट आप लेंगे, आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट. देखें रियलिटी है. हमारे यहाँ पैसिव इनकम में
प्रॉब्लम इज दिस कि पूरा मुल्क इस वक्त रियल एस्टेट में पैसे डाल रहा है. इट्स बैड फॉर द इकॉनमी बट दिस इज़ हाउ द सिचुएशन इज़. अगर आप मुझे भी इतने पैसे देंगे ना, मैं भी अगले दिन जाकर डिफेंस में कोई या बैरियर टाउन में या कहीं पे प्लॉट लेकर आराम से बैठ जाऊँ. मुझे पता मुझे 3 साल बाद उसमें रिटर्न मिल जाना है. स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूँगा, मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा. मैंने तो अभी तक जितनी इन्वेस्टमेंट किया है आई हैव नॉट बीन सक्सेसफुल. बट आपको और हम लोगों को, यहाँ पे लोगों को क्या चीज़ प्रमोट साथ साथ करनी चाहिए. हम ये चीज़ें करते हैं. One, we should tell the youth and educate the youth about passive income. Right. कि आप अपनी जॉब के साथ कैसे आप डेवलप कर सकते हैं. A, B, रियल एस्टेट के अलावा भी पैसिव इनकम है. और अगर आप पैसिव इनकम किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे डालते हैं जिससे आपको पैसिव इनकम भी आती रहे लेकिन आपकी इकोनॉमी भी चलती रहे, देन डॉलर ले लेना, प्लॉट ले लेना आपके लिए अच्छा, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है. एंड आई थिंक इस काम के लिए पीपल लाइक एनेबलर्स एंड अदर पीपल दैट डूइंग अ वंडरफुल जॉब, वो लोगों को छोटे स्केल के ऊपर काम करने की आदत डाल रहे हैं, कारोबार करने की आदत डाल रहे हैं, छोटे कैश फ्लो से, छोटे टर्नओवर से, बट छोटी इन्वेस्टमेंट से करते करते आप रोल ओवर करके कोई भी हम ये भी सिखा देते हैं ना कि आपने 2 साल में 3 साल में मार्क ज़करबर्ग बन जाना. ऐसे नहीं होता, वो भी रेयर ही होता है. यू हैव टू हैव अ प्लान 10 साल 15 साल एंड इट्स अ स्लो एंड स्टडी गेम. सो अगर हम रियलिटी भी साथ साथ बच्चों को बताएंगे ना, तो आई थिंक उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल. प्लीज इसके बाद अब्दुल्ला, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. थैंक यू वेरी मच. अच्छा, आपका क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट इज गुड इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज गुड मनी. मेरा इसके अगेंस्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ गुड फाउंडर. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फाउंडर, द विजनरी, the person who brings up an idea, a concept and like to get it developed. Problem ये है कि हमारे पास उस किस्म का exposure और experience फाउंडर के पास नहीं होता. उसने सेकंड हैंड पढ़ा हुआ होता है और वो FIP करके उधर आया हुआ होता है और वो समझता है कि वो एक बिजनेस चला लेगा. यहाँ पे I think there is a disconnect here. I think the way we are seeing, I think things are evolving and we are learning a lot. A good founder is not necessarily is a good CEO. Running a business is entirely different beast. It could be one person. It shouldn't be one person. हमने दुनिया में मॉडल्स देखे हैं, Y कॉम्बिनेटर की भी देखे हैं और भी मॉडल्स देखे हैं. वहाँ पे इन्वेस्टर, VC फंड्स इन्वेस्टमेंट देने से पहले कहते हैं कि आर यू अ गुड CEO और नॉट. यू कुड बी अ गुड फाइनेंस पर्सन, यू कुड बी अ गुड मार्केटिंग पर्सन, could be a good IT person, but that doesn't make you a good CEO as well. Making the right decisions, hiring the right people, and moving at the right time, that takes a lot and that takes experience. So मैं ये समझता हूँ there is a disconnect. जो हमारे VC फंड वाले हैं, मुझे लगता है कि वो एक ख़ास प्रोफाइल देख रहे होते हैं, एक ख़ास एज ग्रुप को देख रहे होते हैं, एक ख़ास बैकग्राउंड को देख रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं देखते इज दिस पर्सन गोइंग टू बी अ गुड CEO और नॉट. माय 2 cents. थैंक यू. अब्दुल्ला, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. मैन्युफैक्चरिंग में हो आप, टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में हो, ये एक डिफ़िकल्ट बिजनेस है पैसे रेज करने के लिए. मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस वैसे ही डिफ़िकल्ट होता है पाकिस्तान में जो है. क्या चैलेंजेस आए हैं? बिकॉज लॉट ऑफ यंग पीपल हु कम टू अस, दे कम विद आइडियाज़ जो मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं और हम उनको आमतौर पे कहते हैं थोड़ा सा कुछ और कर लो, सर्विसेज कर लो, ज़्यादा बेहतर होगा. बिकॉज दिस इज़ कैपिटल इंटेंसिव, चाहिए होते हैं पैसे स्टार्ट करने के लिए वगैरह वगैरह, और लॉसेस बड़े बड़े हैं. क्या आपका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस रहा है और क्या वेंचर रेस करने की कोशिश की है, VC रेस किया है या एंजल के राउंड के लिए गए हो? व्हाट हैज़ बीन द एक्सपोजर सो फार? क्या लर्निंग्स आपकी? हाँ जी बिल्कुल. जिस तरह के अभी जो है ना हमारे यहाँ पे स्टार्टअप जो कल्चर है उसमें जो सबसे बड़ा एक मिसकॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है इट्स द ओनली वे टू सक्सेस. हालांकि ऐसा नहीं है. इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी जो सक्सेस है उसका एक पार्ट है और जो आपकी बाकी पार्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उसके अंदर वो आपकी मार्केट है, आपकी प्रोडक्ट है और आपकी सेल्स हैं. अभी
हमारे जितने भी जो स्टार्टअप्स हैं इनको मैं देखता हूँ, मिलता हूँ, तो सबका जो फोकस होता है वो होता है प्रोडक्ट पे होता है या उस पे होता है इन्वेस्टमेंट रेज करने पे होता है। राइट। वो सेल्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं होता, प्रॉफिट्स पे बिल्कुल फोकस नहीं होता। Right. अगर तो आपका फोकस सेल्स है और प्रॉफिट्स है और आपको सेल्स आ रही हैं, तो आई डोंट थिंक कि उसके बाद जो है आपको इन्वेस्टमेंट जो रेज करना वो आपका difficult फोकस होगा। ये है कि just build the business, sales Yes, होने चाहिए, exactly. and that's the approach to take. और उसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट जो है रेज करना वो मसला नहीं है। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया। हम लोगों ने जो था बिजनेस को बिल्ड किया, सेल्स की, विद वैल्यू क्रिएट की, ठीक है, जो था कैश फ्लो जनरेट किया। उसके बाद फिर हमने जो थी रेज की इन्वेस्टमेंट और हमें जो थी इजीली मिल गई, इसलिए कि उसमें ट्रेंड उसके जो कुछ जो होता की पॉइंट्स होते हैं, उसका रिटर्न होता है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको इन्वेस्टर को कन्विंस करनी पड़ती हैं। तो बिल्कुल ये जो था मुश्किल था, इसलिए कि किसी भी बिज़नेस को जो है बूटस्ट्रैप करना, और जो ख़ास तौर पे आपका मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है, इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग में जो है आपका बहुत सा कैपिटल रिक्वायर्ड है, मशीनरी रिक्वायर्ड है, तो उसको जो बूटस्ट्रैप जो करना तो वो एक डिफ़िकल्ट जो टास्क था। तो हम जी ग्रेट, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन फॉर द पैनल, उसके बाद हमने आईसी के क्या इस पे जाना है, वहाँ पे लाइव टीवी पे हम होंगे। तो आई एम गोना क्विकली रैप दिस अप, 10 seconds, quick advice for youngsters, because the crowd बहुत young crowd है, quick advice for them if they want to do a startup, what are the things that they need, what is the mindset they need? 10 seconds, not more than that. Irfan, number one, quickly, speed. So the advice I would give to my younger self would be कि आप लोग अभी यंग स्टेज के ऊपर हैं, तो जितनी नेटवर्किंग कर सकते हैं, जितने दोस्त बना सकते हैं वो बनाएं। एट सम स्टेज वो आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे बिजनेस में। नेटवर्किंग करें जी। सर प्लीज़, साकिब साहब आप तो Well, I would say if anyone wants to do anything in their life, think about how do you create a value for yourself, and as well as how you can make an impact in people's life by solving a problem. सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम जो वैल्यू ऐड करे, बिल्कुल ठीक। ऐड रियल प्रॉब्लम के साथ साथ बिग प्रॉब्लम भी ढूंढे हैं। रियल Big problem, find that big problem. and find good co-founders also. It's a very lonely The business. right Don't get people who are along. believers. Make sure you they complement you. ज़बरदस्त बिलीवर्स ढूंढने जो आप पे यकीन रख रहे हैं आपके आइडिया पे। क्विक जी मेरी एडवाइस वही है, फाउंडर चाहे स्टार्टअप करना है चाहे या जॉब करनी है, सर्च एंड लर्न व्हाट पैसिव इनकम इज एंड मीट पीपल एंड डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, पैसिव इनकम को समझें और नेटवर्क करें। क्विक, I think persistence is the key. Persistence. वो तो आपकी कहानी है पूरी परसिस्टेंस की, बस परसिस्टेंस है, ठीक हो जाए जी। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ जी, जी मेरे 10-second answer is that if you want to solve a problem, work in that industry first, work in another company first, just to understand, to feel the atmosphere, feel the business before you want to venture out in it. Do not take a huge big risk, investing other people's money without knowing what you're going into. डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद अपना काम शुरू करें। ठीक है, हो गया जी। अब्दुल्ला, try to find good partners and start selling.